नमस्ते स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर प्राची फरतियाल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज देवप्रयाग। आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे कुछ एग्जांपल्स में और कुछ डेफिनेशंस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। तो आज स्टार्ट करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करने से पहले हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब समझते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो है इसको हम लोग मैपिंग भी बोलते हैं, कभी कभी हम लोग ऑपरेशन भी यूज़ करते हैं, और इसका नाम कभी कभी हम लोग फंक्शन या कॉरस्पॉन्डेंस भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये कॉरस्पॉन्डेंस है या ऑपरेशन है एक सेट से दूसरे सेट में। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, इसको हम लोग या तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। दोनों बात हमारी सेम है। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम लोग मान लें कि हमारे पास दो वेक्टर स्पेसेस हैं V एंड U, जो कि एक फील्ड के ऊपर हैं। लेट अस सपोज दैट फील्ड बी F, देन अ मैप T is a function here from V to U is called linear transformation if it holds two condition. Is called linear transformation if it holds two condition. What are these conditions? Firstly is, if we are having function t, then u plus v, which are the elements of u, or you can say any vector space. So here it will come tu plus tv. And second condition is that if there is any scalar a along with the element of vector space, then it can be written as atu for all a belongs to field and uv belongs to any vector space. Now if we have tau plus bv, then by condition first we can separate it like this. So I can separate it as tau plus tbv. It is from condition 1, by condition 1, and then we are having second condition, this one. So we can write it as atu plus btv. So all together, if I can combine these two conditions, it can also be said that if we are having au plus bv is equals to atu plus btv, then it is also known as a linear transformation. This property is also known as the linearity property. And linear transformation, you know that it is also known as homomorphism. Now let us take an example of linear transformation. Now this example is show that the function t such that v3r to v2r defined by txyz is equals to xy for all xyz belongs to r is a linear transformation from v3r into v2r. So we have been given a condition txyz is equals to x comma y. This condition we have to use in numeric. Now let us suppose we have two elements of vector space u equals to x1 y1 z1, and let us suppose v is equals to x2 y2 z2, which belongs to v3r, because it has three elements, so 3r. It has two elements, so v2r. And see here, it is going v3r to v2r because it has three elements and it has become two elements. So now let us suppose if AB belongs to R, then by the condition of linear transformation we have TAU plus BV is equals to, now put the value. So here it will come A, and at the place of U we can write this, and at the place of V we will write this. So here it will come x1 y1 z1 and plus b x2 y2 z2.
Now solving this one, so here it will come t, I can write ax1 plus bx2. I am combining also, I am multiplying and combining with other one. So here it will come ay1 plus by2 az1 plus bz2. So लेकिन हमें क्या कंडीशन क्या मिली है, टी एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई. सो व्हेन आई विल सॉल्व इट, तो इट विल कम ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू एंड हेयर इट विल कम ए वाई वन प्लस बी वाई टू. सो अकॉर्डिंग टू दिस वन आई विल गेट दीज टू. फर्दर सॉल्विंग इट, तो हमें क्या मिलेगा, ए एक्स वन ay1 plus bx2 by2, taking the common out, so here it will come a x1 comma y1 plus b x2 comma y2. so अगर मैं इसे फिर ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो क्योंकि x1 y1 है, यहाँ पर को हमने देखा है कि टी एक्स वाई जेड इक्वल्स टू एक्स वाई है. तो जब मेरा x1 y1 है, तो मैं यहाँ टी x1 y1 z1 लिखूँगी इसकी जगह. सो हेयर इट विल कम ए टी x1 y1 z1. सिमिलरली यहाँ भी बी टी एट द प्लेस ऑफ x2 y2 इट विल कम x2 y2 z2. So a and this one I can write it as u because these are the coordinates of t. So here it will become a t u plus b t v. Now see here I had given this one and I solve it to this one. So you are seeing it that this is the condition of linear transformation. So t is linear transformation from V3R into V2R. Now let us suppose we have been given the same question. Show that the function t such that V3R to V2R defined by t x y z is equals to x y for all x y z belongings to R is a linear transformation from V3R into V2R. Also prove that T is homomorphism. See here, firstly it is asking for the linear transformation. So we will solve it as we have already told you that how we have find it out, linear transformation. Secondly, it is asking T is homomorphism. For homomorphism, firstly we have to show that it is a linear transformation. Secondly, we have to show that this is onto. This is onto. So for the linear transformation, we will show it like this as we have already done. We have already done it. See, this is the method. Now to show homomorphism. For homomorphism, T is linear transformation from V3R into V2R. We have already showed. Now we will show that it is homomorphism. So for homomorphism, we have been given given any x y. This belongs to V2 because it is having two elements only, and also we have been given x y z. This belongs to V3 because it is having three elements, and these two have been given as this one. This condition it has been given to us, so we will take this one. Now we know that for every element of x we are having one image, but z is left. Z is not having any image, so this one is onto. So T is onto because T is linear transformation. T is having linear transformation and T is onto and onto. Thus T is homomorphism.
नाउ स्टूडेंट्स वी विल टॉक अबाउट लीनियर ऑपरेटर। इससे पहले हम लोगों ने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया था। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने कहा था कि अगर v और u आपके दो वेक्टर स्पेसेस हैं तो v से u में अगर जो हमारा फंक्शन लगता है उसे हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। लेकिन लीनियर ऑपरेटर में क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर स्पेस है vf हमारा कोई वेक्टर स्पेस है तो लीनियर ऑपरेटर हमारा जो है वो फंक्शन होगा t इस तरीके से कि v हमारा v पे ही फंक्शन करे। ठीक है, तो इसे हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, लेट वी एफ बी अ वेक्टर स्पेस देन अ लीनियर ऑपरेटर ऑन v इज अ फंक्शन t फ्रॉम v टू v इटसेल्फ। ठीक है, तो इसको हम लोग अब हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की ही हमारा ये लगेगा, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी। लेकिन इसमें हमारा क्या है, v से v में ही आएगा। आपके u v जो एलिमेंट्स हैं वो आपके केवल v के ही होंगे। तो ये हमारी इसमें प्रॉपर्टी लगेगी, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगेगी, लेकिन ये हमारा फंक्शन v टू v में ही होगा। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे रही हूँ। तो लेट अस सपोज कि वी आर हैविंग अ क्वेश्चन लाइक दिस, let V be a vector space of all n by n matrices over the field F and let Q be a fixed n cross n matrix। ठीक है, जिसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। let us suppose Q be the fixed n cross x n matrix। if TP is equals to PQ minus QP for all P belongs to vector space, verify that T is a linear transformation from V into V। अभी मैंने आपको लीनियर ऑपरेटर का डेफिनेशन बताया था, तो इसमें मैंने आपसे कहा था कि जो फंक्शन v टू v में ही लगेगा तो उसे हम लोग लीनियर ऑपरेटर कहेंगे। तो अगर आप ये नहीं लिखना चाहें तो इसमें आप लिख सकते हैं कि वी हैव टू शो दैट इट इज़ अ लीनियर ऑपरेटर, वी हैव टू शो दैट t इज़ अ लीनियर ऑपरेटर। नाउ हाउ टू शो इट, नाउ वी नो वी आर हैविंग p and q, it has already given, since p and q are two n cross n matrices, which you can say that these are square matrices because it is n cross n, so it is a square matrix। So if p and q are two n cross n matrices, so we know that when we will multiply pq or qp, both will be n cross n matrices। आपको पता है अगर 3/3 को हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3/3 की ही matrices मिलती है। तो pq and qp are n cross n matrices। अब अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं pq माइनस qp, तो ये भी हमारा क्या होगा, n क्रॉस n मैट्रिसेस होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि जो उसका सम होता है या डिफरेंस होता है वो हमारा सेम ऑर्डर के मैट्रिसेस में ही होता है। तो इसलिए हमें क्या मिलेगा, TP इज इक्वल्स टू PQ माइनस QP बिलोंग्स टू V मिलेगा, क्योंकि P हमारा n क्रॉस n है और ये वाली की वैल्यू भी हमारी n क्रॉस n है। तो ये हमारा क्या है, वेक्टर स्पेस को बिलोंग करेगा। नाउ thus T is a function from V to V, thus T is a function from V to V। ये हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, हमें ये शो करना है कि T इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये हमारा लीनियर है, इसे हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे लेट P1 P2 belongs to V and let us suppose AB belongs to field। Now if it is like this, so we can write AP1 plus BP2। जब हम लोग A को P1 से मल्टीप्लाई करेंगे और B को P2 से मल्टीप्लाई करके उसको ऐड करेंगे तो ये हमारा n क्रॉस n मैट्रिक्स होगा। तो हम इसे लिखेंगे n क्रॉस n मैट्रिक्स। सो इट इम्प्लाइज AP1 प्लस BP2 बिलोंग्स टू V। क्यों, क्योंकि V में हमारे क्या है, इस टाइप का एलिमेंट्स हैं, तो हमें ये क्या है, हमारा V को बिलोंग करेगा। नाउ आई एम फाइंडिंग इट आउट TAP1 प्लस BP2, क्योंकि मुझे अब देखना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, तो मैं इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाऊंगी। तो ये जो है ये इसके बराबर आएगा, लेकिन यहाँ हमने कहा है कि Q इज़ फिक्स, लेकिन P हमारा फिक्स नहीं है, तो P की जगह हम AP1 प्लस BP2 इंटू Q
माइनस क्यू AP1 प्लस BP2 लिख सकते हैं। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आएगा AP1Q प्लस BP2Q माइनस AQP1 प्लस ये आएगा BQP2। आप इसे नेगेटिव लिख सकते हैं अंदर से। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो A वाले को हम एक साथ ले लेंगे और B वालों को एक साथ ले लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा P1Q माइनस QP1 और यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस B हम कॉमन ले लेंगे तो P2Q माइनस QP2, जिसे ये हमें मालूम है कि ये हमारा क्या है, TP1 के बराबर है, क्योंकि हमने अभी P1 की वैल्यू निकाली थी। TP की वैल्यू हमारी क्या है, ये है, तो ये हमारा इसी फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसे TP1 लिख सकते हैं प्लस BTP2, ये हमारा P2 के फॉर्म में आ रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं, और B हमारा कॉमन है। तो व्हाट वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर, T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V into V itself. So we can also say that T is linear operator. Now students, we are taking our new topic, vector space isomorphism. ये वेक्टर स्पेस आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है? अगर हमारे पास कोई मैप इस तरीके से है कि एनी मैप T सच दैट V to U, ये हमारा आइसोमॉर्फिज्म कब कहलाता है? जब हमारे पास तीन कंडीशंस हो। तीन कंडीशन हमारी क्या क्या हैं? एक तो पहले T को क्या होना है, T इज 1 1, सेकेंड T इज ऑन टू, और तीसरी इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, TAU प्लस BV इज इक्वल्स टू ATU प्लस DTV। किसके लिए? फॉर ऑल UV विच बिलोंग्स टू V एंड AB बिलोंग्स टू फील्ड। अगर बच्चों ये तीनों कंडीशन होल्ड करती है तो हम लोग बोलते हैं V इज आइसोमॉर्फिक टू U, और इसको V इज आइसोमॉर्फिक टू U को डिनोट करने के लिए हमारे पास सिंबल होता है V इज आइसोमॉर्फिक टू U। हम इसे डिनोट करते हैं। नाउ लेट अस सपोज आई हैव अ क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज शो दैट मैपिंग T सच दैट R square to R square defined by TUV is equals to VU for all UV belongs to R square is an isomorphism of R square R onto itself। अब हमें इसमें आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है। अगर हमें होमोमॉर्फिज्म दिखाना होता तो हम केवल ऑनटू दिखाते और लीनियरिटी प्रॉपर्टी दिखाते, लेकिन क्योंकि हमें आइसोमॉर्फिज्म दिखाना है तो हमें इसमें तीन चीज़ें दिखानी पड़ेगी। हमें पहला क्या दिखाना है कि ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी है इसमें, दूसरा हम दिखाएंगे कि ये 1 1 है, तीसरा हम ये दिखाएंगे कि ये ऑन टू है। ठीक है, तो नाउ लेट अस सपोज वी हैव U इज इक्वल्स टू U1 V1 एंड V इज इक्वल्स टू U2 V2 एंड स्केलर AB बिलोंग्स टू R। तो हम पहले दिखाएंगे कि इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, तो हमें ये शो करना पड़ेगा AU प्लस BV। तो AU प्लस BV हमारा क्या आएगा, AU1 V1, हम इसकी वैल्यू रख देंगे, BU2 V2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा AU1 प्लस BU2 AV1 प्लस BV2। अब अगर मैं इसमें ऑपरेटर लगाती हूँ T, तो ये हमारा आएगा TAU प्लस BV इज इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, हम यही कंडीशन लगाएंगे, TUV हमारा VU हो जाता है, तो ये हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी, ये हमारा आगे आ जाएगा, ये हमारा पीछे आ जाएगा, तो ये आएगा AV1 प्लस BV2 और यहाँ आएगा AU1 प्लस BU2। वी विल सेपरेट करके ये आ जाएगा AV1 AU1 प्लस BV2 BU2। कॉमन ले लेते हैं, AV1 U1
प्लस बी V2 U2, ये कंडीशन हमें दे रखी है, ये कंडीशन हमारी TU की है और ये कंडीशन हमारी V की है। तो ये हमारी लीनियरिटी प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई हो रही है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लग रही है, तो हैंस T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब हम दिखाएंगे कि ये 1 1 है। सेकेंड, T इज 1 1 वी हैव टू शो। तो वी नो दैट TU इज इक्वल्स टू TV। ये अगर हमारे पास TU इक्वल्स टू TV होगा तो ये हमें क्या इम्प्लाई करेगा, V1U1 हमने इसकी वैल्यू रख ली है और इसकी वैल्यू हम लोग रखेंगे V2U2। ये हमें क्या इम्प्लाई करेगा कि V1 की वैल्यू V2 के बराबर होनी चाहिए और U1 की वैल्यू हमारी U2 के बराबर होनी चाहिए। अगर हमारी V1 की वैल्यू V2 के बराबर है और U1 की वैल्यू U2 के बराबर है तो U हमारा V के बराबर आएगा, यानी कि ये 1 1 है। हर एक वैल्यू U के लिए हमारी एक वैल्यू V की होगी। तो हैंस T इज़ 1 1, हैंस T इज़ 1 1। अब हमें शो करना है इट इज़ ऑन टू। So now see here, now we have been given any V comma U belongs to R square, there exists U comma V belongs to R square such that TUV is equals to VU। आप इसमें से देख रहे होंगे कि हर एक प्री इमेज के लिए हमारे पास एक इमेज है। तो जब हमारे पास किसी एक प्री इमेज के लिए हर एक इमेज होती है तो ये हमारा ऑन टू हो जाता है। तो इट मीन्स ये हमारा ऑन टू फंक्शन है। सो T इज़ ऑन टू। हमने शो कर दिया है कि T इज़ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, या आप कहेंगे हैंस T हैज़ लीनियरिटी प्रॉपर्टी। Moreover, it is 1 1 and onto. Thus, T is isomorphism.